A very good morning, children. Today we'll start a poem on killing a tree. It is a poem written by J.B. Patel, and she has described in this poem that how you can kill a tree, how kill a tree can be pulled out completely. Okay, so we'll go on stanza by description. So look at the first stanza. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing air of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. So, in the first paragraph, the poet wants to express that it is not easy to kill a tree. Just wounding it with a knife will not harm the tree. It is because a tree is very strong and it has grown big and stout over many years. It has fed on the soil and it has sucked the in air and sunlight to grow up. It's put it puts forth new leaves. So what happened in the first paragraph, the poet has described that it is not ये easy नहीं है किसी भी पेड़ को गिराना. ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप एक नाइफ्स के चाकू के थ्रू जो है आप पेड़ को हार्म कर सके. ये इस वजह से है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और कई सदियों से उसने जो है सदियों के बाद वो बड़ी हुई है और उसने जो है ज़मीन से रिसोर्सेज को खींचा है और एयर से अपने आप को ग्रो किया है और सनलाइट की मदद एयर और सनलाइट की मदद से बहुत विशाल हुई है. और जो इसके लीव्स जो हैं और वो और बड़े और जिसकी वजह से होते जा रहे हैं. नाउ लुक एट द सेकंड स्टैंजा. शी hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal and form close to the ground, will rise curled green twigs, miniature bark, which is unchecked, will expand again to the former size. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth, and it is to be roped, tied, and pulled out, snapped out. So in the next paragraph, poet has described you might try to kill it with an axe. Okay, its bark will badly wounded. Even if you have cut it down, it will put forth new twigs. After some time, the twigs will grow into thick branches and limbs again. So chopping and hacking will not kill a tree either. So in the next paragraph, the poet has described that you might kill it with the help of axe. कुल्हाड़ी की मदद से आप उसे काट सकते हैं और उसके जो barks है, उसके छाल है, वो बुरी तरह डैमेज हो जाएंगे. Even if you have cut it down, अगर आपको इसे आपने इसे काट भी दिया होगा, it will put forth new things, और इसमें नई कलियाँ दोबारा से खिल जाएंगी और जो है नए पत्ते दोबारा उग जाएंगे. एंड कुछ समय बाद वो जो छोटे पत्ते हैं वो बड़े ब्रांचेस और मजबूत ब्रांचेस में बन जाएंगे. और चॉपिंग हॉपिंग हैकिंग विल नॉट किल अ ट्री. सो कुल्हाड़ी से मारना और उसको गिरा देना ही इसका एक इलाज नहीं है. सो next look at the next paragraph. Or pulled out entirely out from the earth cave and strength of the tree exposed, the source white and wet, most sensitive, hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in the sun and the air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. So in the next paragraph, the poet has described, so to kill a tree you have to uproot it completely, and you can do it by tiring ropes and pulling it out of with the violent jerk. Once the root is out, the tree lose its strength, but even then its root is not dead. It will be dead when it dries up and it is unable to sprout again. एंड जो पोएट जो है ये डिस्क्राइब करता है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि अगर आपको पेड़ को ख़त्म करना है तो उसको पूरी जड़ से झटके के साथ रस्सियों की सहायता से खींचना होगा ताकि जो है उसकी जड़ें टूट जाएं. और उसके बाद उसके जब एक बार क्योंकि जो है अर्थ में जड़ें जो हैं उन्होंने सदियों से उसका
न्यूट्रिशन को खींचा है ज़मीन से और वो जो है काफ़ी मजबूत हुई हैं और जड़ के साथ खींचने के साथ वो टूट जाएंगी और उनका जो रिसोर्स मिलने का साधन है वो ख़त्म हो जाएगा। वंस द रूट इज़ आउट, जब रूट निकल जाएगी तो ट्री का जो जितनी भी शक्ति है वो सारा एक्सपोज हो जाएगा, सारा खुल जाएगा एंड वो अपनी स्ट्रेंथ जो है सारा लूज़ कर जाएगी। बट इवन देन इट्स नॉट डेड, उसके बाद भी वो नहीं मरेगी। इट विल बी डेड व्हेन इट ड्राइज अप, और वो ख़त्म कब होगी? बिल्कुल जब वो सूख जाएगी। सो इट इज़ अनेबल टू स्प्राउट अगेन, ताकि जो है सूखने के बाद जो है वो दोबारा स्प्राउट ना कर सके। इस पोएम में जो जीवा पटेल है उसने ये डिस्क्राइब किया है कि कैसे जो है एक पेड़ को जो है गिराया जा सकता है। ये संभव नहीं है कि उसको चाकू की सहायता से उसके काटा जा सके, लेकिन जो है आप एक्स की सहायता, कुल्हाड़ी की सहायता से आप उसे काट सकते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, इसके बाद भी अगर आप उसे ज़मीन पे छोड़ देंगे तो दोबारा से उसकी जो नई नई जो पत्ते हैं वो उग जाएंगे और वो कुछ समय में वो बड़े ब्रांचेस बन जाएंगे और इसके बाद वो दोबारा स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप, पोइट जो है आगे कहता है, अगर आपको पेड़ उखाड़ना है तो आपको जो है उसे रस्सी से बांध के झटके के साथ खींचना होगा ज़मीन से, और उसके बाद उसकी सारी शक्ति जो है एक्सपोज हो जाएगी और इसके बाद वो अपनी सारी शक्ति खो देगा और जब वो सूख जाएगी तो वो पूरी तरह जो है सूख कर ख़त्म हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोएम। थैंक यू चिल्ड्रन।